Good morning, students. I Ghanshyam Daya, PGT Biology KV number 1 Bikaner. Today, we will learn a new topic that is organism and population. Before starting organism and population, we have to know about the term ecology. It is the branch of biology which deal with the interaction among organisms and between the organisms and its physical environments. यानी ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो एनिमल्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और एनिमल्स, उनका एबायोटिक फैक्टर के साथ में आपस में किस टाइप से इंटरेक्शन है, किस टाइप से वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी जब स्टडी की जाती है तो इकोलॉजी कहलाती है. You can see a picture in which showing different abiotic factor like as waters, like as sun, it would produce temperatures and winds. They are lot of abiotic factors, and they influence the uh, lifestyles and then the life of the biotic factor like as plants and animals. So the study of the plants or animals with their abiotic factor, that study is known as ecology. Now, the level of biological organization. In level of biological organization, we can divide it in different components like as organism, population, community, ecosystem, biomes, and biosphere. So that is the biological organization. You can see a picture in which showing individual organisms and group of individual, that is known as population. Group of different population, that is known as communities. Group of different communities, two and more communities assemble and form ecosystem in which interaction of the communities with the abiotic factor, that is ecosystems, and two and more ecosystem form biomes, and biome forms biosphere. So that is the biologically organization. Now, what is the organism? The organism is the living component of the environment at a individual level. At is the basic unit of ecological hierarchy. इकोलॉजिकल हेरेची की, या हम कहें किसी भी एनिमल्स का जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, हम उसको ऑर्गेनिज्म कहेंगे. लिविंग है और इंडिविजुअल्स है. नाउ, पॉपुलेशन. Population, the sum total of all individual of the species in a specific geographical area. एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो सकती है, दे ऑल आर नोन एज populations. Now, communities. Communities, assemblies of all the population of different species present in an area that interact among themselves. एक एरिया में रहने वाले दो या दो से अधिक जो स्पीसीज होती है, वो कम्युनिटीज बनाती है. एंड ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इकोसिस्टम बनाता है, एंड ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम बायोम बनाता है. यानी व्हाट इज बायोम? यानी इट इज ए लार्ज यूनिट which consist of major vegetation types associate fauna in particular climatic condition. बहुत सारा वेजिटेशन यानी प्लांट्स हैं और बहुत सारे फना यानी एनिमल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं. यू कैन सी एग्जांपल्स: ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, deciduous forest, sea coast, desert, etc. are the major biome of the India. Now, habitats of different organisms. It is maybe extreme and harsh habitats. First, scorching राजस्थान डेजर्ट, यानी जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. परपेचुअली रेन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, या जहां बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिशें होती. डीप ओशियन टेरेंसीज,
ओशियन के अंदर का एकदम बॉटम वाला पोर्शन, टॉरेंशियल स्ट्रीम्स, परम फॉरेस्ट पोलर रीजन यानी बहुत ज्यादा ठंडा एरिया, हाई माउंटेन टॉप माउंटेन के ऊपर का पोर्शन, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग बहुत उबलते हुए पानी का झरना, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट बदबूदार जो कंपोस्ट पिट होता है उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। एंड लास्ट आवर इंटेस्टाइन आल्सो द हैबिटेट ऑफ सम बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, now this picture, you can see that the relationship between the annual precipitations and the temperature। आप इस पिक्चर को आप बड़े गौर से आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो बारिश को और टेम्परेचर का आपस में जो रिलेशनशिप के आधार पर बहुत सारे अलग अलग जो एरियाज बनते हैं, बायोम बनते हैं। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में ये देखो, फर्स्ट है जैसे डेजर्ट है, यहाँ टेम्परेचर की रेंज बहुत ज्यादा है लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है ग्रासलैंड एरिया, ग्रासलैंड एरिया के अंदर बारिश थोड़ी सी है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो बारिश है यानी मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन यहां से लेकर यहां तक स्टार्ट होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि 150 से लेकर 400 से ज्यादा तक यहाँ बारिश होती है लेकिन यहाँ टेम्परेचर कम है, तो यू कैन सी द ग्रीन रीड। नेक्स्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड एक्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। यानी आप देख सकते हैं आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा जो है जगह, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो -1.1 है, यानी वहां बर्फ रहती है। तो अलग अलग जगह पर बारिश और टेम्परेचर के आधार पर अलग अलग टाइप की हैबिटेट होती है और अलग अलग टाइप की हैबिटेट होने पर उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। ओके, नाउ another biome, complexes of community that extend over a large geographical area। बहुत बड़े एरिया के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज रहती है तो उसको बायोम कहते हैं। इट इज करेक्टराइज बाय द डोमिनेट वेजिटेशन, यहाँ हम इसको करेक्टराइज किया जाता है, करेक्टराइज वेजिटेशन बहुत ज्यादा प्लांट्स ग्रो करें। तो बहुत सारे बायोम जो इंडिया के अंदर पड़े जाते हैं, डेजर्ट, ग्रासलैंड, कॉनिफर फॉरेस्ट, आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे बायोम हैं जो कि इंडिया के अंदर आते हैं। नाउ यू कैन सी ए पिक्चर्स विच शोविंग डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स like as desert, temperate grassland, tropical forest, temperate broadleaf forest, conifer forest and arctic and alpine tundra। आप सभी को जैसा कि हमने पहले ग्राफ देखा था उसमें स्पष्ट हो गया है कि अनुअल जो प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश है, और अनुअल जो टेम्परेचर है उसके आधार पर अलग अलग टाइप के बायोम होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो उस प्लांट्स पे डिपेंड होने वाले एनिमल्स होते हैं। तो इस टाइप से बायोम की हैबिटेट बनती है। नाउ, organism and its environments, rotation of sun and the tilt of its axis causes the annual variation in the intensity and duration of the temperature resulting distinct season। आपको पता है सन का रोटेशन होना और हमारी जो अर्थ है उसका टिल्ट अपनी एक्सिस से, जिसके कारण क्या होता है कि अनुअल वेरिएशन आती रहती है, जिसके कारण आपको पता है किसी एरिया के अंदर जो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और किसी पर कम होती है, इसी के अकॉर्डिंग किसी जगह टेम्परेचर कम हो जाता है, किसी जगह ज्यादा हो जाता है। तो इस कारण से क्या होती है, सीजन बनती है, सीजन यानी ऋतु। ठीक है, कहीं बारिश होती है, कहीं समर सीजन होता है, कहीं कोल्ड सीजन होता है। तो इस टाइप के कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इस कारण से बहुत सारी वेरिएशन दिखने मिलती है।
These variation along with annual variation in precipitations for major biomes such as desert, rainforest and tundra. और इन्हीं वेरिएशन के कारण आप अलग अलग टाइप के मौसम देखने को मिलेंगे। कहीं ज्यादा बारिश है यानी प्रेसिपिटेशन फॉर मेजर बायोम जैसे डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है एंड टुंड्रा। टेम्परेचर, वाटर, light and soil are the key element that lead to so much variation in the physical and chemical condition of the habitats। आपको पता है टेम्परेचर का, पानी का, लाइट का, सोयल का, ये क्या है, कुछ की एलिमेंट है। इनमें वेरिएशन से, इनमें जो वेरिएशन होते हैं, क्योंकि ये एक टाइप के फिजिकल और केमिकल फैक्टर है जो कि बहुत सारे बायोलॉजिकली ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट और एनिमल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। बोथ एबायोटिक like as physicals and chemicals and biotic components यानी पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर एंड कंपटीशन characterize the habitat of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो हैबिटेट को वहां के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर डिसाइड करते हैं। दैट्स क्लियर। नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। तो याद रखिए दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट आर फर्दर we can divide it by physicals and chemicals। in physical, that is temperature, pressure, and chemical like as water, soil, rainfall, humidity, they are chemical factors। Temperature and light, they are physical factors, and they are a and entirely we can say they that they are abiotic factor, non living components है। बायोटिक फैक्टर, अब बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं यानी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट मे बी पैथोजेंस, it may be parasite, it may be predator and it may be competitors। तो ये कुछ भी हो सकते हैं जो अलग अलग टाइप के हैबिटेट को डिसाइड करते हैं। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर तो जानते हो, किसी की हॉटनेस या किसी की को डिसाइड करने का एक माप है। तो टेम्परेचर डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल and high altitude to 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। टेम्परेचर आपको पता है कि प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड से ट्रॉपिकल डेजर्ट तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है। Thermal spring and deep sea hydrothermal vent are unique with 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल स्प्रिंग और डीप सी के अंदर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर जो है इफेक्ट करता है काइनेटिक ऑफ द एंजाइम्स, एंजाइम की एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है, बीएमआर को एक्टिवेट करता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को इफेक्ट करता है, एंड हमारे बॉडी की बहुत सारी फिजियोलॉजिकली एक्शंस है उसको टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है। टेम्परेचर के आधार पर एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है यूरीथर्मल्स। यूरीथर्मल वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकते हैं हाई रेंज को, यानी ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की बहुत बड़ी रेंज को सहन कर सकते हैं, तो वो कहेंगे यूरीथर्मल। स्टीनोथर्मल, ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज, यानी एक छोटा सा टेम्परेचर की जो रेंज होती है उसी को ही सहन कर सकते हैं, उससे ज्यादा और उससे कम को वो सहन नहीं कर पाते। ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं स्टीनोथर्मल। नाउ वाटर, वाटर इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप जानते हो कि जल बिना जीवन नहीं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को ये इन्फ्लुएंस करता है। आपको पता है बारिश, जिस जगह वाटर प्रेसिपिटेशन ज्यादा है उस जगह पेड़, जहां वहीं प्लांट ज्यादा होंगे, और जहां प्लांट ग्रो करेंगे वहीं एनिमल्स ज्यादा ग्रो करते हैं। तो द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज आल्सो डिपेंड ऑन वाटर, यानी किसी जगह का प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ पानी पे डिपेंड करता है।
द सैलिनिटीज वरीज इन एक्वेटिक एनवायरमेंट। जो सैलिनिटी होती है यानी पानी के अंदर जो नमक होता है, साल्ट की जो मात्रा है, वो डिपेंड करती है, यानी इन वरीज करती है, यानी हर टाइप के अलग अलग एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सैलिनिटी अलग होती है। 5% इज इनलैंड वाटर, फ्रेश वाटर होता है। 5% 30 to 35 सी वाटर होता है। मोर देन 100 इन हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स होते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एक होता है यूरी हेलाइन और दूसरा होता है स्टीनो हेलाइन। यूरी हेलाइन भी क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो सैलिनिटी की वाइड रेंज, यानी जो जो साल्टनेस की वाइड रेंज को सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे यूरी हेलाइन। और वो ऑर्गेनिज्म जो केवल नेरो रेंज की सैलिनिटी को ही सहन कर सकते हैं, उनको बोलेंगे स्टीनो हेलाइन। Now, light. Light is the most another important factor which influence the organism. Plant produce food by photosynthesis, which only possible in presence of light. Hence, it is very important for autotrophs. आपको पता ही है autotrophs है, photosynthesis process लाइट की प्रेजेंस में होती है, और प्लांट्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए फूड बनाते हैं। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Plant species, herb and shrub adapt for photosynthesis under canopy। आपको पता है हर्ब और सर्ब छोटे होने के कारण जो बड़े प्लांट है उसकी कैनोपी उसके नीचे की तरफ रहते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटो पीरियडिक रेस्पॉन्स लाइक फ्लावरिंग। आपको पता है कुछ एक एनिमल्स होते हैं उनकी फ्लावरिंग जो है वो लाइट पर ही डिपेंड होती है, यानी किसी को लाइट ज्यादा चाहिए तभी फ्लावर आते हैं और किसी में लाइट कम होगी तभी फ्लावर आएंगे। तो किसी के फ्लावर विंटर सीजन में आते हैं, किसी के फ्लावर जो है समर सीजन में आते हैं। तो लाइट का जो ड्यूरेशन है वो भी एनिमल्स ये फ्लावरिंग के लिए जरूरी होती है। एनिमल्स यूज डायurnals एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड एज क्यू फॉर टाइमिंग देयर फॉरगिंग रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेशन। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं डायurnals, मतलब सीजनल, कुछ एक होते हैं जो निकलने वाले होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं आपको पता है रात के टाइम निकलते हैं जब अंधेरा होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो लाइट के दौरान ही निकलते होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब होता है कि जो लाइट होती है बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करती है, यानी उसको कब ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा या कब माइग्रेशन होगा या कब फॉरगी होगी, ये सब डिपेंड करता है लाइट पे। इसलिए लाइट भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स की इन्फ्लुएंस करने के लिए। नाउ, सॉइल। सॉइल, it is the property of soil which vary according to the climate, the weathering process। आपको पता है सोइल है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्लाइमेट की कंडीशन है, और जो विथरिंग यानी जो सोइल का जो फॉर्मेशन हुआ है उन प्रोसेस पर डिपेंड करती है। सोइल कंपोजिशन, सोइल का किस टाइप का कंपोजिशन है, यानी क्ले सोइल, सैंडी सोइल एंड लोमी सोइल्स। ग्रेन साइज, जो सोइल के पार्टिकल का साइज क्या है, छोटा है बड़ा है एकदम फाइन है। एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पार्टिकल्स आपस में एकदम ज्यादा फाइन पार्टिकल है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। जिस सोइल की जितनी ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो सोइल उतनी ही फर्टाइल होएगी, तो उस पे उतने ही ज्यादा प्लांट ग्रो होंगे। उतने ज्यादा प्लांट ग्रो होंगे तो उस प्लांट पे डिपेंड होने वाले एनिमल्स भी। तो इस टाइप से सॉइल भी एनिमल्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। दीज करेक्टराइज अलोंग विद पीएच, मिनरल्स कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एरिया। अब आपको पता है उस सोइल के पीएच में भी सेल एसिडिक हो, बेसिक हो, कुछ क्रॉप्स होती है या कुछ प्लांट्स होते हैं वो एसिडिक पीएच में उगते हैं, कुछ बेसिक पीएच में उगते हैं। इसी टाइप से मिनरल कंपोजिशन कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक एरिया के वेजिटेशन को
वेजिटेबल्स जो वेजिटेशंस है यानी प्लांट्स एनिमल्स है उसको इन्फ्लुएंस करती है। द सेडिमेंट characterize often determine the type of benthic animal in aquatic environment। जो सोयल है उसका जो जो बॉटम पोर्शन है वो भी बहुत सारे जो बेंथिक एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, जैसे पोंड है या लेक है, उसके जो बॉटम में बहुत सारे जो बेंथिक जो एनिमल्स है वो जो रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को भी प्रभावित करती है, उसकी लाइफस्टाइल को डिटरमाइन करते हैं। तो सोइल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। थैंक्स।